अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है चौधरी अरफान और इस चैनल का नाम है नजीब चौधरी। टुडे वी आर लर्निंग 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश चैप्टर नंबर 4.4। चैप्टर नेम इज द अनसिंकेबल शिप। लेट्स गो टू द रीड द अनसिंकेबल शिप। तो पहले मैं पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूँगा। ऑन 10th April 1912, the largest luxury ship in the world set sail from Southampton in England to New York. She was called the Titanic. The word Titanic means huge. This was her maiden voyage. That is her first voyage. She set out to cross the Atlantic Ocean and she carried more than 2,000 passengers. The Titanic was like a floating town. Everyone called the Titanic the finest ship in the world. Everyone was proud of her. She was as tall as a building with 15 stories inside. She was like a large hotel with grand staircases, dining rooms, shops, and swimming pools. Everyone thought that the Titanic could never sink. They called her the unsinkable ship. The ship's builders were so sure of this that they put only a few lifeboats on the ship. The journey was very comfortable. The passengers were proud because they were traveling in the best ship in the world. They felt safe. Then came the night of 14th April. The sky was clear and the sea was calm. Many of the passengers were asleep. Captain Smith knew that there were icebergs nearby, so he told a man to keep a watch from the top of the ship. Suddenly, at 11:40 p.m., the man saw something. He grew cold with fear. A huge iceberg stood right in the path of the Titanic. Iceberg, he yelled. Captain Smith fought hard to steer the Titanic away from the iceberg, but the direction slowly and her side scraped. The mountain of ice, a slower of ice fell on the decks and the iceberg cut. Holes along the ship's side. Water began to pour into the lower decks. Most passengers heard nothing and slept on. Captain Smith and his crew could not stop the water flooding through the ship. They knew the Titanic was in great danger. The unsinkable ship was sinking. At 12:15 a.m., Captain Smith sent urgent messages on the ship's radio asking for help. Help! Titanic sinking! Come quickly! Then he ordered the crew, wake all the passengers up. A ship called the California was only 20 miles away, but she did not receive Titanic's messages. Her radio was turned off and the radio operator was asleep. Another ship called the Carpathia heard the Titanic's calls and sailed at full speed towards her. Unfortunately, the Carpathia was far away and she took over 3 hours to reach the Titanic. Meanwhile, the Titanic was sinking rapidly. The crew lowered the lifeboats into the sea, but there was only enough space in the boat for a few hundred passengers. The Titanic had more than 2,000 people on board. The ship began to tilt into the sea. People began to jump from the decks into the ice cold water. With its lights still shining, the Titanic stood upright for a few minutes. Then, at 2:20 a.m. on 15th April, she vanished into the sea. About 1,500 people drowned. Captain Smith and most of his crew went down with the ship. The Carpathia arrived at 3:40 a.m. The ship's crew found the lifeboats and saved 700 people in them. They also found chairs and pieces of wood floating on the water. But almost all of the people in the water had drowned or died of cold. The Carpathia was too late to save them. The sinking of the Titanic made people think harder about the safety to passengers on ships. They asked why ships carry such few lifeboats and why they turn off their radios in 1913. It was decided that all ships must have enough room in their lifeboats to carry everyone on board. It was also decided that ships must keep their radios working every hour of the day and night. In 1985,
Scientists sent a marine to look for the wreck of the Titanic. They found the ship lying into pieces on the ocean floor at a depth of around 4,000 meters, 30,000 feet. Later, they took photographs of the wreck and brought small parts of into the surface of the water. There are many stories of bravery on that tribal night in April 1912. In 1998, the director James Cameron made a famous film of the Titanic's maiden voyage. It is a very sad film. Almost everyone who sees the film leaves the cinema in tears. अब मैं इसका ट्रांसलेशन वाला जहाज 10 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी जहाज इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। इसे टाइटैनिक कहा जाता था। लफ्ज़ टाइटैनिक का मतलब है बहुत बड़ा। ये इसका पहला सफ़र है। वो बखैर ओकियानोस को उबूर करने के लिए निकली और वो 2000 से ज़्यादा मुसाफिरों को लेकर गई। टाइटैनिक एक तैरता शहर की तरह था। सब ने टाइटैनिक को दुनिया का बेहतरीन जहाज कहा। सबको इस पर फख्र था। वो 15 मंजिला इमारत जितनी ऊंची थी। अंदर वो एक बड़े होटल की तरह थी जिसमें बड़ी सीढ़ियाँ, खाने के कमरे, दुकानें और स्विमिंग पूल थे। सबका ख्याल था कि टाइटैनिक कभी नहीं डूब सकता। इन्होंने इसे नाकाबिल डूबने वाला जहाज कहा। जहाज बनाने वालों को इस बात का इतना यकीन था कि इन्होंने जहाज पर सिर्फ चंद लाइफ बोट्स रखी थीं। सफ़र बहुत आरामदायक था। मुसाफिरों को फिक्र था क्योंकि वो दुनिया के बेहतरीन जहाज में सफ़र कर रहे थे। इन्होंने खुद को महसूस किया। 14 अप्रैल की रात आई। आसमान साफ था और समुंदर पर सुकून था। बहुत मुसाफिर सो रहे थे। कैप्टन स्मिथ को मालूम था कि करीब भी बर्फ के तोदे हैं, इसलिए इसने एक आदमी से कहा कि वो जहाज के ऊपर से नज़र रखे। अचानक 11:40 को आदमी ने कुछ देखा। वो खौफ से ठंडा हो गया। टाइटैनिक के रास्ते में एक बहुत बड़ा आइसबर्ग यानी बर्फ के तोदे खड़ा था। आइसबर्ग! वो चिल्लाया। कैप्टन स्मिथ ने टाइटैनिक को आइसबर्ग से दूर करने के लिए सख्त जद्दोजहद की, लेकिन जहाज ने आहिस्ता आहिस्ता सिमत बदली और इसके पहलू ने बर्फ के पहाड़ को कचर दिया। बर्फ का एक शारो डेक पर गिरा और आइसबर्ग ने जहाज के अतराफ में सुराख कर दिए। निचले डेकों में पानी बहने लगा। ज़्यादातर मुसाफिरों ने कुछ नहीं सुना और सो गए। कैप्टन स्मिथ और इसका अमला जहाज का जरिया आने वाले पानी के सैलाब को ना रोक सका। वो जानता था कि टाइटैनिक बहुत खतरे में है। ना डूबने वाला जहाज डूब रहा था। 12:15 कैप्टन स्मिथ ने जहाज के रेडियो पर मदद के लिए फौरन पैगाम भेजे। मदद, टाइटैनिक डूबना, जल्दी आओ। फिर इसने अमल को हुक्म दिया। तमाम मुसाफिरों को जगाने के लिए कैलिफोर्निया नामी जहाज सिर्फ 20 मील दूर था, लेकिन इसे टाइटैनिक के पैगामात मौसूल नहीं हुए। इसका रेडियो बंद था और रेडियो ऑपरेटर सो रहा था। कारपाथिया नामी एक और जहाज टाइटैनिक की आवाज़ सुनकर पूरी रफ्तार से इसकी तरफ रवाना हुआ। बदकिस्मती से कारपाथिया बहुत दूर थी और इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3 घंटे लगे। इस दौरान टाइटैनिक तेजी से डूब रहा था। अमले ने लाइफ बोट्स को समुद्र में उतार दिया, लेकिन कश्ती में सिर्फ चंद 100 मुसाफिरों के लिए काफ़ी जगह थी। टाइटैनिक पर 2000 से ज़्यादा लोग सवार थे। जहाज समुद्र में झुकने लगा। लोग छतों से बर्फ के ठंडे पानी में कूदने लगे। अपनी रोशनियों के साथ टाइटैनिक चंद मिनटों तक सीधा खड़ा रहा। फिर 15 अप्रैल को 2:20 को वो समुद्र में गायब हो गया। तकरीबन 1500 अफराद डूब गए। कैप्टन स्मिथ और इसका ज़्यादातर अमला जहाज के साथ नीचे चला गया। कारपाथिया सुबह 3:40 को पहुंचा। जहाज के अमले ने लाइफ बोट्स को तलाश किया और इनमें सवार थे 7
1900 अफराद को बचाया। इन्हें पानी पर तैरते हुए किया और लकड़ी के टुकड़े भी मिले, लेकिन पानी में मौजूद तकरीबन सभी लोग सर्दी से डूबकर मर गए थे। कार्पेथिया ने इन्हें बचाने में बहुत देर कर दी थी। टाइटैनिक के डूबने से लोगों को बहरी जहाज पर मुसाफिरों का हिफाजत के बारे में सोचना मुश्किल हो गया। इन्होंने पूछा कि बहरी जहाज इतनी कम लाइफ बोट्स क्यों ले जाते हैं और वो अपने रेडियो क्यों बंद कर देते हैं। 1913 में ये फैसला किया गया था कि तमाम बहरी जहाज़ों को अपनी ज़िंदगी की कश्तियों में इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि वो सब को सवार कर सकें। ये भी फैसला किया गया कि बहरी जहाज़ अपने रेडियो को दिन और रात के हर घंटे काम करते रहें। 1985 में साइंसदानों ने टाइटैनिक के मलबे को तलाश करने के लिए एक आबदोज भेजी। इन्होंने जहाज़ को तकरीबन 4000 मीटर 13000 फीट की गहराई में समुद्र के फर्श पर 2 टुकड़ों में पड़ा पाया। बाद में इन्होंने मलबे की तस्वीर ली और इसके छोटे हिस्सों को पानी की सतह पर लाए। 1998 के इतना गरीब पर बहादुरी की कई दास्तानें हैं। हिदायतकार जेम्स कैमरून ने सफ़र की मशहूर फिल्म बनाई है। ये बहुत अफसोसनाक फिल्म है। तकरीबन हर वो शख्स जो सिनेमा को आंसू में देखता है। ये टाइटैनिक एक फिल्म है। ये टाइटैनिक जो स्टोरी है ये रियल है। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, वो आपको यूट्यूब पर या अदर प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, आप देखिए, आप समझ जाए। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर एवरीवन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।